Hello children, we are discussing chapter number 5, India's heritage in the field of science and technology. In previous video we discussed about the part of metallurgy and chemistry. Today we are going to discuss about the science of medicine and surgery. Here you can see the pictures of the sages which had contributed a lot in the field of medicine and surgery. Maharshi Charak, Maharshi Sushrut and Vagbhat. A physician who fails to enter the body of a patient with the lamp of knowledge and understanding can never treat disease. He should first study all the factors, including environment, which influence a patient's disease, and then prescribe treatment. It is more important to prevent the occurrence of disease than to seek a cure. Right? This is the thought which is given by Maharshi Vagbhat. Right? And Maharshi Charak. So, their thinking was that the physician, those who want to treat a patient, he must have a knowledge, then he had to understand the factors which includes environment, which helps in curing the disease of a person. So after that he had to prescribe the medicines, right? So it is necessary for a physician to understand what is the factor, what are the factors that affect the patient, and with that help they can cure them, right? So science of medicine and surgery, right? In this field also India attained an unprecedented achievement, right? And since ancient period, these three sages, Maharshi Charak, Maharshi Sushrut and Vagbhat, they are known as the pioneers in the Indian medicine, science and surgery. Through their intense researches and reached to the greatest height. So these are the three main personalities or main sages who have worked in the field of medicine to cure the patient, as well as surgeries were also carried out during that time. Maharshi Charak has written a book named Charak Samhita, in which he has mentioned over 2000 medicinal herbs. जो भी डिफरेंट टाइप के प्लांट्स है, हर्बल प्लांट्स है, उसमें से अलग अलग जड़ी बूटियों को यूज़ करके बहुत सारे पेशेंट्स को क्योर किए जाते थे। और ऐसी जड़ी बूटियाँ 2000 मेडिसिनल हर्ब्स वेर फाउंड, राइट? तो 2000 ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं कि जिससे पेशेंट को क्योर किया जाए। अलग अलग बीमारी में अलग अलग टाइप के ट्रीटमेंट्स दिए जाते थे जिसमें ये यूज़ किए जाते थे। एंड महर्षि सुश्रुत हैज़ मेंशन्ड इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन सर्जरी, और महर्षि सुश्रुत ने जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाए थे बहुत सारे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक पिक्चर में, राइट? कि अलग अलग से, जैसे कृथारिका शस्त्र है, कुशापत्र शस्त्र है, मुद्रिका शस्त्र है, शरारी मुखा शस्त्र है,
त्रिकुर चक्र शस्त्र है, ऐसे बहुत सारे। फिर स्टिचेस लेने के लिए सूची शस्त्र है। तो ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स सर्जरी के लिए यूज्ड किए जाते थे। एंड दैट इंस्ट्रूमेंट वेर सो शार्प that they would split a single vertical hair into 2 divisions। और ये जो सारे शस्त्र आपने इंस्ट्रूमेंट्स देखे वो ऐसे शार्प थे कि इवन एक हेयर को भी वो 2 पार्ट में उसको कट कर सकते थे। दो उसके एक सिंपल वर्टिकल हेयर में से उसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर सकते थे। एंड वाघभट्टा हैज़ रिटन अ बुक वाघभट्ट संहिता is also an important work. So whoever want to be a doctor, they are studying this book even today also, right? So it is very useful for every doctor. Hindu herbal science of ancient time is enriched with huge collection of minerals and medicines from plants and animals. So ये जो information है, जो हर्बल साइंस है हमारा, वो कलेक्शंस है जिसमें मिनरल्स और मेडिसिन्स प्लांट और एनिमल्स से लिए जाते थे और जिसका यूज़ रिकवरी के लिए किया जाता था। दिस हैज़ प्रेजेंटेड अ डिटेल्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ऑफ मेकिंग मेडिसिन, देयर क्लासिफिकेशन एंड देयर यूसेज। तो ये बुक्स है जो चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, वाघभट्ट संहिता है, ये सारी बुक्स हमें उसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशंस देते हैं कि जिससे मेडिसिन की प्रोसेस कैसे होती है, कैसे मेडिसिन्स बनती है, उसके क्लासिफिकेशंस और कौन सी ट्रीटमेंट के लिए कौन सी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे इस बुक से मिलती है। दे कुड इवन स्टॉप ब्लड सर्कुलेशंस विथ बाउल शेप्ड बैंडेज। तो ब्लड सर्कुलेशंस को भी अगर कंट्रोल करना हो तो उसके लिए बैंडेज भी वहाँ पे यूज़ किए जाते थे। इवन दे कुड स्किलफुली ऑपरेट एन एब्डोमेन, किडनी, कैटरैक्ट, हर्निया, स्टोन, पाइल्स एंड ब्लैडर्स एक्सेट्रा। तो इन सब चीज़ों के ऑपरेशंस भी उस टाइम में किए जाते थे, जैसे ये इंस्ट्रूमेंट्स का दिया है, राइट। तो इस तरीके से की चीज़ें पास्ट में भी होती थी, जबकि वह उस टाइम में ना तो इतने जो अभी जो हाईफाई इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं उस टाइप की चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, बट स्टिल दे वर डूइंग दिस जॉब वेरी नाइसली, राइट। बहुत सारे ऑपरेशंस किए जाते थे। इवन दे कुड क्लासीफाई ऑल्सो जॉइन द ब्रोकन और डिस्प्लेस्ड बोन and extract the things pierced into the body easily and skillfully, right। तो एक ये थी सर्जरी का पार्ट था। दूसरा कि अगर कोई बोन क्रैक हो गया है, वो डिस्प्लेस हो गया, मीन्स अपनी जगह से हट गया है तो इस सिचुएशंस में उनके पास स्किल्स थी कि वो उसको जॉइन भी कर सके, डिस्प्लेस्ड बोन को वापस अपनी जगह पे स्किलफुली उसको अटैच ठीक कर सके। उसके अलावा अगर कोई भी चीज़ किसी के बॉडी में घुस गई है, राइट, जैसे कि जो वेपन्स यूज़ होते थे उस टाइम में, बर्छी, भाला, तो ऐसे वेपन्स की अगर कुछ तीनी, कुछ छोटा सा पार्ट भी अगर बॉडी में चुभ गया है, घुस गया है, तो उसको भी वो रिमूव कर सकते थे। द रिकॉग्नाइज सिम्टम्स एंड डायग्नोस द डिसीज़। तो कोई भी डिसीज़ हो, कोई भी सिम्टम्स के हिसाब से डिसीज़ को डायग्नोस करते थे और उसके हिसाब से उसको मेडिसिन प्रोवाइड किए जाते हैं। दे ऑल्सो गेव डाइटरी डायरेक्शंस आफ्टर पोस्ट रिकवरी ऑफ डिसीजेस। उसके अलावा वो उस टाइम के डाइटरी प्लान भी फॉलो करवाते थे जैसे अभी होते हैं। सो दैट टाइप ऑफ थिंग्स वर अवेलेबल इन द पास्ट ऑल्सो। And they had knowledge of plastic surgery as well as joining nose and ears। उसके अलावा प्लास्टिक सर्जरी का भी नॉलेज था और वो प्लास्टिक सर्जरी भी उस टाइम में भी पॉसिबल थी। They showed a keen interest in teaching students
the method of surgery by doing surgery on dead body or on the wax statue. तो ये जो थे वो तीनों आचार्य थे, मीन्स एज अ टीचर ऑल्सो दे हैव वर्कड, एंड वो अपने स्टूडेंट्स को, डिसिपल्स को भी वो नॉलेज प्रोवाइड करते थे, और सर्जरी कैसे की जाती है वो सिखाने के लिए आइदर दे वर यूजिंग द डेड बॉडी और समटाइम्स दे विल यूज वैक्स स्टैच्यू, दैट हाउ टू डू दैट थिंग्स that was done in the past. They conducted risky operations during delivery and they were expert gynecologists and pediatricians also. तो उस टाइम में अलग अलग डिविजन्स के डॉक्टर्स नहीं थे, जैसे अभी हमारे होते हैं कि ऑर्थोपेडिक होते हैं, स्किन के अलग डॉक्टर होते हैं, सर्जरी के सर्जन्स अलग होते हैं, तो फिजिशियन अलग होते हैं, बट they were able to do all the kind of work at the same place, right? So they are having a deep knowledge related to the medicine as well as surgery. So they were expert gynecologists as well as the pediatricians. बच्चों के बारे में भी सारी मेडिसिन्स अवेलेबल कर सकते थे. उसके अलावा जो लेडीज़ के प्रॉब्लम्स हैं, राइट, डिलीवरी रिलेटेड हैं, तो इन सब की इंफॉर्मेशंस की उसके पास होती थी. उसके अलावा वेटरिनरी साइंस ऑल्सो डेवलप्ड इन एंशियंट इंडिया. ये सारी चीज़ों के अलावा वेटरिनरी साइंस भी डेवलप्ड हुआ था एंशियंट इंडिया में, बिकॉज स्पेशली हाथी और घोड़े सबसे ज़्यादा यूज़ होते थे उस टाइम में वॉर में, राइट. सो दे हैव डेवलप्ड दैट साइड, दैट हाउ टू नर्चर, हाउ टू टेक केयर ऑफ दीज एनिमल्स ऑल्सो. So they wrote books on diseases related to the horse, means Ashwa, and elephants means Hasti, right. तो उसमें भी फेमस बुक्स है हस्ती आयुर्वेदा, सिलोत्रा एंड अश्वशास्त्र. दिस बुक्स आर वेल नोन. एंड इसके अलावा द स्कॉलर्स और एंड साइंस राइटर्स ऑफ मेडिसिन, वाघभट्ट मेड वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन थ्रू हिज वर्क अष्टांग हृदय इन द फील्ड ऑफ डायग्नोसिस. तो बॉडी को डायग्नोसिस करने के लिए मेनली 8 पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट किया जाता है बॉडी में मेनली. तो उसके लिए भी एक बुक लिखी गई है जो वाघभट्टाचार्य ने लिखी है, उसका नाम है अष्टांग हृदय. दिस बुक इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन पार्ट ऑफ मेडिसिन्स एंड सर्जरी, राइट. So it provide all the knowledge related to the human body and what kind of diseases are there and how to cure them. So we have achieved a lot in the field of science and medicines from our as a part of our old civilization. These instruments which I showed you, right, Aryabhatta. Then here now next topic we will discuss about the mathematics. मैथमेटिक्स की बात करें तो सबसे पहले दिमाग में जो नाम आता है वो है आर्यभट्ट का, राइट, बिकॉज ही गेव द कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो, राइट. आर्यभट्ट ने ज़ीरो को डिस्कवर्ड किया है और इनके ये चीज़ें के फिगर आउट करने के बाद ही आगे की चीज़ें कैलकुलेशंस के लिए जो भी चाहिए वो सब उसके बाद मिलता है, राइट. सो बेस्ट इन्वेंशंस विच वर डन इन द पास्ट दैट वर डन बाय आर्यभट्टा, भास्कराचार्य. दीज आर द मेन पर्सन्स दोज हु हैव डिस्कवर्ड दिस मैथमेटिक्स, right. So Aryabhatta discovered zero, then he started using of decimal system, algebra, theorem of Bodhayan, geometry and arithmetic. These things was discovered by Aryabhatta, and the ancient Indian mathematicians have decided the names of the numbers made up by placing 53 zeros after 1. तो जो मिलियन, बिलियन, करोड़ वो सारे जो है फिगर्स, तो 1 के बाद 53 ज़ीरो
उसका यूज़ करने तक की जो इंफॉर्मेशंस है दैट वेर अवेलेबल टू अस इन पास्ट, राइट। तो 1 के बाद जितने भी ज़ीरो लगाए जाते हैं उसे उसकी कीमत में चेंजेस आता है। तो ये इंफॉर्मेशंस वी हैड अवेलेबल फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स। ओके, द डेसिमल सिस्टम हैज़ बीन सीन ऑन मेजरिंग एंड वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स which had found from the remains of Harappa and Mohenjo-daro, and it had been acknowledged by मेधातिथि during ancient time। तो इन चीज़ों का जो ये डेसिमल नंबर्स है, डेसिमल सिस्टम है, वो मेजरिंग में और वेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ होता था, और उसका एग्जाम्पल्स हमें हरप्पा और मोहनजोदारो से अवेलेबल है, राइट। So these are the inventions which is related to the decimal system, and then equations, different type of equations are there, then which reach up to the infinity numbers, how to find. Most of them you are studying, or some of them you have studied in the past, and some of the numbers these you are studying even in 10th standard. Then next is Bhaskaracharya. Bhaskaracharya was a great discoverer, right? And he has written a book named Lilavati Ganit, and second Bij Ganit. In 1150 AD, he discovered science of addition, subtractions. Then Brahmagupta introduced the types of equations. That different people like Bodhayan discovered theorem which is related to the triangle policy. Then Appasambha had decided the measurement of sacrificial pits, means यज्ञ वेदीज, जहाँ पे यज्ञ किए जाते हैं, तो उसका भी एक अपना मेजरमेंट होता है और उसके हिसाब से ही उसको बनाया जाता है। कितना उसका विड्थ होना चाहिए, कितनी उसकी किस टाइप का उसका कंस्ट्रक्शन है, ये सारी चीज़ें मैथ्स से रिलेटेड है, राइट। तो वैदिक यज्ञास में वो यूज़ किए जाते हैं, और इट ऑल्सो कंसिस्ट एनालिसिस ऑफ प्रिंसिपल्स। तो उसके अलावा आर्यभट्ट ने सबसे इम्पोर्टेंट दिया है वैल्यू ऑफ पाई, विच वी आर यूजिंग 22/7 और 3.14, and this information we get from the book named Aryabhattiyam, right? And he also propounded that pi is constant to show the ratio of circumference and diameter of a circle. तो अगर सर्कमफियरेंस फाइंड करना है सर्कल का या डायामीटर सर्कल का फाइंड करना है, तो फॉर दैट वी नीड टू यूज़ पाई। तो पाई के बगैर वो इंफॉर्मेशंस हमें अवेलेबल नहीं होती। उसके अलावा बहुत सारे इन्वेंशंस है जो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, एक्सेट्रा, राइट। एंड अष्टांग मेथड इंट्रोड्यूस्ड बाय आर्यभट्ट इन हिज वर्क, हेंस आर्यभट्ट इज नोन एज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये सारी चीज़ें आर्यभट्ट ने डिस्कवर्ड की है, इसलिए उसको बोला जाता है फादर ऑफ मैथमेटिक्स। And moreover, he had written many other books like Dashgitika and Aryabhattiyam. He had described main principles of astronomy in short in his named book Arya Siddhanta. तो मैथ्स और astronomy and even astrology also, they are connected with each other. अगर मैथ्स के, क्योंकि मैथ्स के जो बेसिक रूल्स है उसी के रूल्स के हिसाब से कुंडली बनती है, ग्रह और नक्षत्रों की चाल के बारे में पता चलता है। तो वहाँ पे भी ये मैथ्स के जो फंडामेंटल्स है वो यूज़ होते हैं, और उनकी इन्फॉर्मेशन आर्यभट्ट ने अपनी बुक में दी है जिसका नाम है आर्य सिद्धांता, राइट। तो अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्री, both the things are important in calculations of astrology and astronomy. Apart from these, various aspects of mathematics had been discussed by many scholars in their books. Among them, the scholars like Bodhayan,
Apasamba, Katyayan, Bhaskaracharya and Brahmagupta. These all are the important persons who have discovered some of the new aspect of mathematics. Right. Here complex his accomplishments are there. Okay, first to describe zero, delta, lambda, whatever the different symbols which we are using, that type of things, right? And books names like Leelavati Ganit, Bij Ganit, Siddhant Siromani, then Goladhyaya, which is related to the geometry, and different another books which is related to the astronomy. Okay, then other science books which are written during that time, that were Prajanan Shastra, which was written by Brahma Bhavya Panchal, Chikitsa Sangraha, which was written by Chakrapani Datta, Kama Sutra, that was written by Vatsayan, then Vruksha Ayurveda, Maharshi Parashar, then Yoga Shastra, that is महर्षि पतंजलि. ये आप जानते हैं, राइट, क्योंकि पतंजलि प्रोडक्ट हर एक जगह पे अवेलेबल है और बाबा रामदेव उसका प्रचार भी कर रहे हैं, तो यू माइट हैव नॉलेज अबाउट इट. देन यंत्र सर्वस्व, महर्षि भारद्वाज, एंड काल गणना, which was written by Shakmuni. So these are the other books which is related to the science and medicines. Okay, and now next topic which we are going to study, that is related to the astronomy and astrology.